Hello friends, this is Math Guru Pawan Wagh. Our today's topic is quadratic equation part 1. Today we will study about quadratic equation. We have studied the equation in one variable, that is ax plus b is equals to 0. Such equations are called linear equations. And here if you see that the power or the index of x is 1, it shows that it is a linear equation. Whenever you prepare a graph for this equation, or whenever you represent this equation on the graph, you get a straight line. That is why they are called linear equation. Such equations we have already solved in the previous classes, but there are many problems which we cannot solve using linear equations. Let us discuss the problem. The breadth of the rectangle is 4 more than the length, and the area of the rectangle is 36 square centimeter. Find the length and the breadth of the rectangle. Here it is mentioned that the breadth of rectangle is 4 more than the length. Rectangle का जो breadth है वो length से 4 ज़्यादा है. 4 ज़्यादा it means हमें plus 4 करना है. Okay, so suppose length of the rectangle is x and breadth of the rectangle is x plus 4, and here L is equal to x and B is equal to x plus 4. So what we have done, we have converted this statement into mathematical form. Here if you see the length is x and breadth is x plus 4, और यहाँ देखिए plus 4, ये बता रहा है कि breadth is 4 more than the length, तो ये 4 more than है. Okay, so what is the area of the rectangle? The area of the rectangle is length into breadth, that is 36. So what we do, we'll put the value of L here and we'll put the value of B here. So it will be x into x plus 4 is equal to 36, means x square plus 4x minus 36 equals to 0. Such equations are called linear equations, quadratic equations. In this equation x square plus 4x minus 36 is equal to 0. Here the maximum index of x is 2. जो मैक्सिमम पावर है x का, यहाँ जो वेरिएबल इस इक्वेशन में है उस इक्वेशन का मैक्सिमम इंडेक्स या मैक्सिमम पावर या उसकी डिग्री जो है वो अगर 2 होती है, देन सच इक्वेशंस आर नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. We'll solve such equations in this chapter. Let us look at the following table. Here you will see the first equation is ax plus b is equals to 0. So what is the degree here, or what is the maximum index here? So here the maximum index is nothing, means there is 1. So the degree is 1 and the type of equation is linear equation. Let us look at the second equation here. Ax square plus bx plus c is equals to 0. Here the degree or the maximum index is 2, so it is quadratic equation. Here the third equation, you see ax power 3 plus bx square plus cx plus d is equals to 0. So here the degree of this equation is 3, so it's a cubic equation. And the next one is ax power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e is equal to 0. So here the degree is 4 because maximum index is 4, and it is the biquadratic equation or quartic equation. Now अभी आप देखेंगे हर जगह पर a is equal to 0 लिख के रखा है. Why it is 0? See, अगर हम a is not equal to 0 लिखा है, अगर ये 0 का इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा? Then it will become b is equal to 0. So it will be a constant term. अगर यहाँ हम करते हैं इसको कि अगर a सपोज 0 हो जाता है, यहाँ लिखा है a is not equal to 0, बट सपोज यहाँ हम a की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो क्या होगा? दिस टर्म विल बिकम 0. बचेगा क्या? bx प्लस सी, और bx प्लस सी अगर हुआ तो फिर वो क्या हो जाएगा? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, वो लीनियर इक्वेशन होगी. और इसीलिए इस इक्वेशन में सेकंड टर्म 0 हो सकती है, b 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, बट a 0 नहीं हो सकता. ओके, यहाँ हर इक्वेशन में देखिए आपको लिख के रखा है a इज नॉट इक्वल टू 0. Something extra about quadratic equation. It is believed that the ancient Babylonians were aware of such equations. बेबीलोनिया में इस तरह के इक्वेशंस वहाँ के लोगों को पता थे, इस तरह के इक्वेशन वो सॉल्व करते थे.
यूक्लिड मेंशन अ मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सच इक्वेशन। यूक्लिड ने भी इसकी एक मेथड दी है हमें। he was knowing, he has mentioned his the methods to solve such type of equation. Brahmagupta also gave the method to solve such equation. Sridhar Acharya gave the general formula to solve the quadratic equation. श्रीधर आचार्य ने भी एक जनरल फार्मूला दे के रखा है जो हम स्टडी करेंगे इसमें, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. नाउ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. अभी जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है. आपने जीरोज ऑफ पोलिनोमियल स्टडी किया है 9th में. मतलब जिस पोलिनोमियल में आप कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट करते हैं और अगर उस पोलिनोमियल की वैल्यू पूरी जीरो आ जाती है तो हम उसे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल बोलते हैं. उसी तरह से जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या होगा कि आपके सामने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में आप कुछ वैल्यूज पुट करेंगे और अगर आप वैल्यू पुट करने के बाद में उस पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है, टोटल वैल्यू जीरो हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ quadratic polynomial. The general form of quadratic polynomial is ax square plus bx plus c where a b c are real number and a is not equal to 0. अभी मैंने आपको बताया कि a जो है वो जीरो के इक्वल क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर a की वैल्यू जीरो हो जाती तो ये फिर क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, ये लीनियर हो जाएगा. Okay, so this is the general form of quadratic polynomial. Now what we will do, we will put some values here. यहाँ x की जगह पर हम अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे. Let's now consider the quadratic polynomial that is px is equals to x square plus 5x plus 6. हमारे पास में quadratic polynomial है. अब हम इसके जीरोज ऑफ polynomial सर्च करेंगे. सबसे पहले हम काम करते हैं, we take some real values for x. ओके, देखिए रियल वैल्यू हम क्या क्या पुट करना है. x की जगह 0, 1, -1, 2, -2, -3. एंड लुक एट हियर. यहाँ देखिए x की जगह पर पहले 0 पुट किया तो इट इज़ p0, px की जगह p0, x स्क्वायर है, हम इसे 0 स्क्वायर लिखेंगे, प्लस एज इट इज़ 5 इंटू एक्स है तो दैट इज़ 5 इंटू 0 प्लस 6. अभी देखिए यहाँ पर ये दोनों टर्म तो 0 हो रही है फर्स्ट और ये है 6, तो 0 प्लस 6 दैट इज़ 6. नाउ व्हेन वी पुट 1 हियर एट द प्लेस ऑफ 0, अभी देखिए आपको हम क्या करते हैं, यहाँ जहाँ जहाँ 0 लिखा है मैं यहीं 1 1 लिख लेता हूँ. देखिए यहाँ 1 लिखा है, हियर 1, सो इट इज़ 1 स्क्वायर दैट इज़ 1, 1 प्लस 6, सॉरी 5 1 5, 5 and 1, 6, 6 plus 6 that is 12. When we put -1, it is -1 square, 5 into -1 plus 6. So what will happen? This -1 square का तो +1 हो जाएगा, +1 और ये +6, ये हो गया 7. 7 में से आप 5 को सब्ट्रैक्ट करते तो you'll get 2 here. In the same way, here if you see x की जगह पे जब 2 पुट किया तो क्या होगा, we'll get 20. यहाँ देखिए -2 और -3 जब वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ दोनों केस में 0 वैल्यू आ रही है. आपको इसी तरह से सॉल्व करते जाना है. -2 आप पुट करेंगे, देखिए हम चेक करके देखते हैं. -2 स्क्वायर इज 4 एंड दिस 6 दैट इज 10. ये पॉजिटिव 10 है और 5 2 ज़ा 10, ये नेगेटिव 10 है, ये कैंसिल हो जाएंगे, आपस में 0 वैल्यू आ जाएगी. उसी तरह से जब हम -3 पुट करते हैं तो -3 स्क्वायर होता है 9, पॉजिटिव 9 एंड दिस पॉजिटिव 6, ये हो गया पॉजिटिव 15 और ये नेगेटिव 15. तो यहाँ दो वैल्यूज हमें ऐसी मिली है जिसके कारण पोलिनोमियल की वैल्यू हमें 0 मिलती है. सो दे आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, मीन्स x इज इक्वल्स टू -2 एंड x इज इक्वल्स टू -3. दे आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एंड दे आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. एंड एवरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैज़ 2 जीरोज. जितना उसका इंडेक्स होगा, जितना उसका मैक्सिमम पावर होगा, उस इक्वेशन की उतनी वैल्यूज होती है. अगर आप लीनियर पेयर में देखें तो आपको x एक ही वैल्यू मिलती है x की. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में आपको लीनियर इक्वेशन में आपको एक वैल्यू मिलती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो वहाँ पर आपको 2 वैल्यूज मिलती है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 वेयर a, b and c are real numbers and a is not equal to 0 is called a quadratic equation. मतलब जो भी इक्वेशन, ये उसका जनरल फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस फॉर्म में अगर है और जिस इक्वेशन का मैक्सिमम इंडेक्स 2 है, सो दैट इज़ कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और यहाँ x जो है वो दैट इज़ अ वेरिएबल. ओके, सो ये जिस तरह से लिखी है, दिस इज़ द जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म, ये इसका जनरल फॉर्म है. आपको कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जिसमें आपको कहा जाएगा कि राइट इन जनरल, राइट द इक्वेशन इन जनरल फॉर्म और राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. इस तरह के क्वेश्चंस हमें 1 मार्क में आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकते हैं. ओके,
In this quadratic equation, a is called a quadratic polynomial, quadratic कोएफिशिएंट. अभी देखो a किसके साथ है, एक्स स्क्वायर के साथ में, तो इसी कारण इसको क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट बोला है. ये b जो है वो x के साथ में, तो लीनियर कोएफिशिएंट हो गया, और c तो कांस्टेंट टर्म है. द टर्म क्वाड्रेटिक कम्स फ्रॉम क्वाड्रेटस, विच इज अ लैटिन वर्ड, एंड द वर्ड क्वाड्रेटस मीन्स स्क्वायर. तो अगर आप यहाँ देखते हैं तो ये जो क्वाड्रेटस है, ये क्वाड्रेटस का मतलब होता है स्क्वायर, और ये स्क्वायर के कारण ही एक्स स्क्वायर है, इसके साथ a है, तो इसी के लिए इसको क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट बोला है. ओके, ये स्क्वायर वाले के साथ का जो कोएफिशिएंट होगा दैट इज क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट. द स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज ऑल्सो कॉल्ड क्वाड्रेटिक फंक्शन. इसे क्वाड्रेटिक फंक्शन भी कहा जाता है. देर आर वेरियस यूजेस ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस. अभी क्वाड्रेटिक फंक्शन के बहुत सारे यूजेस हैं. जैसे फर्स्ट, व्हेन द रॉकेट इज फायर्ड अपवर्ड, द पाथ ऑफ द रॉकेट इज डिफाइंड बाय द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो रॉकेट का जो पाथ होता है दैट इज डिफाइंड बाय अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, देन द शेप्स ऑफ द सैटेलाइट डिस्क, reflecting mirrors in the telescope, lens of the eyeglasses and the orbit of the celestial objects are defined by the quadratic equation. इन सारी चीज़ों में quadratic equation का यूज होता है. Okay, the path of the projectile is defined by the quadratic equation. Okay, and when the brakes are applied to the vehicle, the stopping distance is calculated by using the quadratic equation. जब भी हम ब्रेक लगाते हैं तब भी उस समय भी quadratic इक्वेशन का यूज होता है. किस चीज के लिए? टू फाइंड द स्टॉपिंग डिस्टेंस. We'll solve some example here. Examine whether the following equations are quadratic or not. यहाँ आपके सामने 4 एग्जाम्पल दिए हैं, हमें देखना है कि ये चारों के चारों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट इक्वेशन हियर 3x स्क्वायर प्लस √2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0. हम इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करें, हमें a b c की यहाँ वैल्यू मिलती है. ओके, और हमें एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर जो a है वो 0 नहीं है. ओके, और a अगर 0 नहीं है और मैक्सिमम इंडेक्स अगर 2 है, देखिए यहाँ a है 3 और मैक्सिमम इंडेक्स है 2, सो इट इज़ द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 2, सो दैट द इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. 2x 3x minus 5 plus 1 and 3x 2x plus 5 plus 3. So what we will do here, we'll multiply this 2x in this bracket and we'll multiply 3x in this bracket. So 2x into 3x, it will become 6x square, 2 5s are 10x, 1 as it is, 3 2s are 6, x into x, x square plus as it is, 3 5s are 15x and this 3. So here 6x square यहाँ भी है, 6x square यहाँ भी है, so we'll cancel it. Now the remaining one, that is minus 10x plus 1 here, and this plus 15x plus 3 हम इसको साइड शिफ्ट कर देते हैं. So it will become minus 10x minus 15x, it will be minus 25x, and 1 minus 3 that will be minus 2 is equal to 0. हम दोनों को पॉजिटिव कर लें, that is 25 plus 25x plus 2 is equals to 0. Okay, so this is not a quadratic polynomial, this is a linear polynomial or linear equation, so that the given equation is not a quadratic equation. Solve the third question here. Again यहाँ इस x का मल्टीप्लाई हम इस ब्रैकेट में करेंगे, एंड हियर x प्लस 1 x माइनस 1, तो यहाँ हम फार्मूला लगा दें a प्लस बी a माइनस बी का, तो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 में, और यहाँ आप x का मल्टीप्लाई कर ले, दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 7x. ओके, यू कैन शिफ्ट दिस टू टर्म्स दिस साइड, इट विल बी 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, 7x एज इट इज, और ये माइनस 1 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 1. सो अगेन विल कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. तो यहाँ हमको दिख रहा है कि इसका मैक्सिमम पावर जो है, इसका मैक्सिमम इंडेक्स जो है वो 2 है. ओके, हमने देखिए इसे इसे कंपेयर किया, यहाँ हमें ए बी सी की वैल्यू मिल गई, और ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 2, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. Question 4, x square x plus 2 and here 3x x minus 1 minus 5. अब what we will do, we will multiply this x square in this bracket and 3x in this bracket. So x square into x, it will become x cube, 2 into x square, that is 2x square.
यहाँ प्लस है तो हमने यहाँ प्लस लिखा है, 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर, 3x इंटू 1 3x. नाउ शिफ्ट दिस 3 टर्म्स दिस साइड, सो इट विल बी एक्स क्यूब माइनस, देखिए 2x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर माइनस हुआ तो इट विल बी एक्स स्क्वायर. दिस माइनस 3x will become plus 3x and this minus 5 will be plus 5. So here the maximum power is 3. So it is a cubic polynomial. It is not a quadratic polynomial. I hope you must have understood. Write the following quadratic equation in standard form. अभी आपके सामने स्टैंडर्ड फॉर्म जिस तरह से देके रखा है, आपको ये तीनों की तीनों इक्वेशंस को उस फॉर्म में लिखना है. सबसे पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं. तो जो यहाँ आप देखिए तो एक्स स्क्वायर सबसे पहले आए तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म आगे आना चाहिए, तो हम इसको आगे लिखेंगे. फिर इसे जो जैसा है वैसे रखेंगे उसको, मतलब हमें इन दोनों को रिप्लेस करना है. अभी देखिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, विल राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये है माइनस एक्स स्क्वायर, हम इसको यहाँ लिख लेते हैं. फिर माइनस 4x को हमने यहाँ लिखा एंड दिस प्लस 7 विल रिटर्न हियर. सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. नाउ लेट अस राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10y प्लस 7. हम एक काम करें, इन दोनों को शिफ्ट कर लें इस साइड. सो इट विल बी 3y स्क्वायर. ओके, जब पहले सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो हमें ये टर्म तो एज इट इज़ पहले मिली है, यहाँ पर ये इक्वल हमें इधर चाहिए, तो आप इन दोनों को इस साइड शिफ्ट करिए. सो इट विल बी 3y स्क्वायर माइनस 10y एंड माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0. सो दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्ड फॉर्म. यहाँ अगर आप देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में, सो 2 ब्रैकेट्स आर गिवन. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस m प्लस 4 इन m माइनस 10. सो उसके लिए सबसे पहले हमको m का मल्टीप्लाई m माइनस 10 में करना पड़ेगा एंड देन प्लस 4 का मल्टीप्लाई m माइनस 10 में करना पड़ेगा. ओके, तो देखिए m का m में मल्टीप्लाई हो गया m स्क्वायर, और m का 10 में मल्टीप्लाई किया दैट इज 10m. हियर 4 इंटू m 4m एंड 4 10 40. सो m स्क्वायर यहाँ माइनस 10m plus 4m, so it will become minus 6m minus 40 is equal to 0. So this is already in the standard form. हम उसको इस तरह से लिख लें. आई होप इतना आपको अभी समझ में आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ वॉच आवर नेक्स्ट वीडियोज टू गेट मोर डिटेल्स अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आणि तुमच्या सर्वांसाठी पुढचे व्हिडिओज अवेलेबल आहेत. फक्त इंग्लिश आणि हिंदीमध्ये हे व्हिडिओज मी तयार केलेले आहेत, कारण याचा फायदा दुसऱ्या बोर्डच्या मुलांना पण व्हायला पाहिजे. थँक्यू व्हेरी मच.